Hello friends, Zahir Abbas, the former Pakistan cricket captain and batsman, somebody who had an enormous success scoring plenty of runs against India. He played between 1969 and 1985 and was also called the Karachi Bradman. There is a popular story that goes like this. In 1971, when the rest of the world played Australia in Australia, Sunil Gavaskar, the former India captain, the first to the 10,000 test run club, he was part of the World 11 with Zahir Abbas also in the team. And the popular story from Gavaskar goes like this. As he landed at the Adelaide airport, the World 11, which was selected by none other than the late Sir Don Bradman. Don Bradman was at the airport to receive the players, and Gavaskar had just made his international debut, scoring those plenty of runs in his maiden series in the West Indies and also scoring some runs in the victorious campaign in England, both under Ajit Wadekar, the first time that Ajit Wadekar led India to test series victories in England and in West Indies. So Gavaskar was then an upcoming promising player, and Don Bradman was keen to meet Sunil Gavaskar. Gary Sobers was the captain of the World 11 and he was with Bradman when Gavaskar landed at the Adelaide airport. Bradman met Gavaskar. There was Zahir Abbas also then, and among the team members was Rohan Kanhai, the legendary West Indies captain. And Rohan Kanhai, as you know, he was Gavaskar's favorite, that Gavaskar named his son Rohan Gavaskar after Rohan Kanhai. Well, that apart, Rohan Kanhai brought along his rest of the teammates and told them, as Gavaskar, Gary Sobers, Zahir Abbas and Sunil Gavaskar were standing together. Gavaskar says that Rohan Kanhai told his teammates that on the left is the Bombay Bradman, on the right is the Karachi Bradman, because Zahir Abbas hailed from Karachi in Pakistan, and in the middle was the real Bradman. So that was the famous story that goes, and which is something a legendary one. Zahir Abbas, he scored 5,000 plus runs, 12 centuries, 6 of them came against India, and he was so good against the Indian spin quartet, the then famous spin quartet that comprised left arm spinner Bishan Singh Bedi, off spinners Erapalli Prasanna and S. Venkataragavan, and leg spinner B.S. Chandrasekhar. He scored so many runs, that Zahir Abbas, that he virtually finished the test careers of the spin quartet. Zahir Abbas was in Mumbai recently and at a private event organized by ex-IRS officer V.K. Tripathi, who is also an Urdu poet, at an event at the C.K. Naidu Hall of the Cricket Club of India, which houses the Brabourne Stadium. I was lucky to be part of the select gathering that were invited and had a chance to meet and interact with Zahir Abbas. Now 77 years old, he shifts between London and Karachi. He has married an Indian who from Kanpur has been an interior designer whom he met during his county cricket days, English county cricket days, playing for Gloucestershire for a number of years. So in this interaction,
we got to ask Zahir Abbas and get answers from him about how it was playing then and his views on the current players also. And Zahir Abbas is a legendary figure not only in Pakistan cricket but also in world cricket. And one thing that he kept on stressing was that the India-Pakistan cricket relations should resume, and he was not really open to the idea. He did not like the idea of India and Pakistan playing in neutral venues like it is happening nowadays. So he wanted to see India and Pakistan play each other in Pakistan and India like it was before. So let's listen to Zahir Abbas and his views on cricket in general and what made him so successful, especially against the Indian spinners, and what was the secret to his scoring runs. Mind you, he is one of those rare cricketers who has scored 100 first-class hundreds, and his 100th hundred came in the test match involving India in Lahore in 1982. Let's listen to Zahir Abbas. I had the chance to meet Zahir Abbas after 20 years. It was in 2005 March during the India versus Pakistan test match in Bangalore, which was also Inzamam ul Haq's 100th test match. Inzamam ul Haq was the captain of Pakistan then, and Indian team was led by Sourav Ganguly. That particular test match, India lost, Inzamam scoring 100 and Yunus Khan scoring a big 100 for Pakistan. It was exactly after 20 years that I got to meet him again, thanks to VK Tripathi, and also for special thanks goes to Clayton Murzalo of Midday for asking me to cover the event for his newspaper Midday, of which he is the group sports editor. So 20 years apart, I meet Zahir Abbas again, and the t-shirt that I am wearing is 20 years old. It was given by the Karnataka State Cricket Association to the journalists covering the Bangalore Test match of 2005 in Bangalore, and it is so well kept, and the quality of the good t-shirt is so good that it still looks fine. And this is the shirt. Ind Pak 2005, and that is the KCA logo. Well, I did remind, of course he would not remember, I did mention to Zahir Abbas that I met him during the test match in Bangalore in 2005, and he just raised his eyebrow and said, well, that's quite a long time. ओए हीरो अभी तो मुझे नाम बता रहा है शायद आप पहचान ना पहचान। अरे छोड़ यार मुझे भी डाउट था बिकॉज योर कैप इज मिसिंग। जब अंपायरिंग करते थे ही यूज्ड टू वेयर अ कैप, जो ऑस्ट्रेलियन वो जो गोल्फ वाले ही यूज्ड टू प्ले फॉर बीबीसीएल ना मैच मैच प्लेयर कोई मैं जयंती आप 71 में हम लोग जब पोल की जीती थी कांग्रेचुलेट करने आए मैं ड्रेसिंग रूम में अरे बिल्कुल ओके बात कीजिए जरा। हेलो हेलो और इनको लास्ट ईयर आना था और इनका वीज़ा भी हो गया था, नहीं आए। इनके मन में कुछ इस तरह की बातें आ गई थी कि शायद नॉट द राइट टाइम, बट अभी इस बार हम इनको खींच के बॉम्बे ले आए। और सबसे अच्छी बात ये है कि जब ये वाघा बॉर्डर से उतरे वहाँ पे कितना इनको लोगों ने घेर लिया। वहाँ पे जितने मेजर, जितने वहाँ पे आर्मी के लोग थे,
आप ही बताइए कितना टाइम लगा निकलने में वहाँ से? 2-2.5 घंटे। हैं? 2-2.5 घंटे लगे उनको वहाँ से वाघा बॉर्डर से आगे आने में। और उसके बाद तो फिर दिल्ली में आए और तो रहा ही रहा। और फिर हमने इनसे जिद की कि आपके ऑनर में विल हैव अ स्मॉल फंक्शन। आपके चाहने वाले बहुत हैं और बहुत लंबी तादाद है, सबको बुलाना पॉसिबल भी नहीं था, बट जिनको मैं जानता था। और मतलब अच्छी बात यह है कि जिसको भी मैंने बोला वो 1 सेकंड नहीं लगाया और उन्होंने कहा भाई ही वॉज माई हीरो, आई लाइक टू बी देयर। अच्छा मेरे ऑनर में ये फंक्शन किया, बड़ी मेहरबानी है। मैं आया वाकई बड़ी मुश्किल से हूँ और लेकिन आया हूँ तो मैं वाकई इंजॉय कर रहा हूँ। और ख़ास तौर पे ये जो डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पर, वाकई बहुत ही जिसको मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उससे ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। तो ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है कि इंडिया जो है वो आगे बढ़ रहा है और हम देख रहे हैं और देखते रहेंगे और करते भी रहेंगे साथ साथ कुछ। थैंक यू। Sir, basically, sir, basically, like coming to CCI, coming to this venue, just your memories. Have you played at CCI in Mumbai? CCA, I didn't play any test match though, but I have played practice matches and other matches, first class matches, you know. जब डोका साहब जिंदा थे तो उस ज़माने में तो मैं बहुत ज़्यादा आया करता था यहाँ पर। अब जब से इंतकाल हुआ है वो ज़रा मुश्किल हो गया है, लेकिन ये कि उनकी बड़ी मेहरबानियाँ थी मुझ पर। तो इस जगह को वेरी इम्पोर्टेंट प्लेस, दिस इज अ वेरी इम्पोर्टेंट प्लेस फॉर मी एंड आई एम ग्लैड टू बी हियर। Just basically sharing your memories of playing in Mumbai, if not CCI. नहीं, I used to come for lunch, dinners and breakfast and all that. तो ये it's a good memory, although I didn't play too many matches here, I didn't score 100, but I played here. Absolutely. Yeah, this is like Karachi, like Mumbai, like Karachi is known for batting. Mumbai is also known for batting. So Exactly. lot of similarities. Exactly. कराची प्रोड्यूस करते थे बहुत से बैट्समैन, अब कराची प्रोड्यूस नहीं करते। अब तो ज़्यादातर प्लेयर प्रोड्यूस किए जाते हैं पेशावर से और लाहौर से भी हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन हैं। लेकिन वो सबसे पहले तो हमारा हीरो जानता है, पीछे बैठा है तो खूब तो बड़ी मुश्किल से कोई एक प्लेयर कराची का आता है और इसके अलावा तो जय साहब, T20 का इन्फ्लुएंस जो हुआ है खास करके टेस्ट क्रिकेट पर, इन योर ओपिनियन हैज इट मेड रेड बॉल क्रिकेट livelier, more interesting, or it has affected adversely? Actually, it's good for the crowd. Yeah. I mean, they enjoy more than a cricketer, honestly speaking. क्योंकि बैट्समैन की लाइफ पे कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना स्कोर कर दे, 100 करना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन ये है कि 50 रन, 20 रन, 40 रन अगर वो करते थे तो अच्छा है। लेकिन ये है कि गुड फॉर द पब्लिक, और फिर जो भी टूर्नामेंट ये करा रहे होते हैं उनको पैसा भी खूब आ रहा होता है। एंटरटेनमेंट वैल्यू ज़्यादा है। जी बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। Sir, basically from tomorrow IPL is starting. Do you follow IPL, guys? Well, when I am at home, I do follow who is coming up, who Indian player is coming up. So I follow them. And बाकी जो international players हैं, I don't follow them that much, but especially Indian players I follow. And what about the PSL, your own T20 league? Do you It will be starting soon.
It will be starting soon. And I tell you, let's see what we can find this time. From Karachi, let's see from. Lekin, anyway, it's going to be interesting this time. We have heard stories from Sunil Gavaskar about meeting with Don Bradman in the 1970 that rest of the world versus there was the tournament, he was there playing for rest of the world. Rohan Kanhai told the rest of the team, the Karachi Bradman, the Bombay Bradman and the real Bradman. We want to hear from you that story. So same thing, what I am going to say, what Sunny has said. But I must say that we had a great association with Indian players. Zuban is same. अंग्रेजी भी बोलते हैं तो वो भी बोल लेते हैं, सब कुछ ही बोलते हैं. क्रिकेट बैट भी हाथ पे होता है, बॉल भी हाथ पे होता है, पैड भी बांधे होते हैं, बाकी सारी चीज़ें बांधी होती है. नहीं, लेकिन वही मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं वर्ल्ड 11 खेल रहा था तो उस वक्त भी, उससे पहले शायद उस वक्त इंडिया की टीम आई हुई थी इंग्लैंड. और क्योंकि मैं सुनील गावस्कर को बहुत अच्छी तरह से जानता था, उससे भी 200 किया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ, मैंने भी इंग्लैंड के खिलाफ मेरा ख्याल 270 और समथिंग किया था. तो मैं इंडियन ड्रेसिंग रूम में चला गया भाई. हालांकि ये अगेंस्ट द नॉर्म है यार कि आप किसी के ड्रेसिंग रूम में चले जाएं, लेकिन मोहब्बत इतनी थी प्लेयरों से कि मैं तो चला गया. फिर उसने इंट्रोड्यूस करवाया सुनील गावस्कर ने. मैंने कहा आई एम हियर टू विश इंडियन टीम टू विन एंड दे वन. What more you can recall of your matches against India, both in Pakistan and India? What will you recollect, and with great fondness you must be remembering those, especially the 3 consecutive hundreds in the ODIs, which is something that is not seen much after that. ODI matches, look what I have said already. Already said, it's good for the public, not for the players. You cannot make Sunil Gavaskar, Sachin Tendulkar, or whoever great player you produce now, and what you're going to produce. You're not going to produce players from T20. You're going to produce players from ODIs and test matches. So batsmen should concentrate, and for bowlers should concentrate ODIs but anyway, as you know, I don't mind playing ODI because a lot of money there. Among the current generation, current set of players, who do you like and why? Very difficult question. But I tell you, overall I must say, India is doing well in ODI too. Sir, you were extremely successful against India, and particularly against the spinners in the 78 series when cricket resumed. They say that you ended the career of India's spin quartet by scoring so many runs against them, and also in T23 series you scored heavily against India. So what was the reason you could tackle India's spinners so well? Because अभी हम देख रहे हैं कि spinners के against India I was in form only. I was in form. I mean, and can I tell you one thing? When India came to Pakistan, I didn't sleep till the Indian team was there. I was having such a concentration. मैं किसको फेस करूँगा, कल कौन है, कौन खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा है. This is what you call only concentration. And I used to have a lot of concentration.
the person who is scoring 100 hundreds should be having a concentration. सर अभी जैसे हम देखते हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनको बड़े प्लेयर्स को, तो आपको कुछ अपनी झलक दिखाई देती है इनके गेम में? नहीं जी, ये लोग बड़े प्लेयर हैं, आप कहाँ बड़े प्लेयर हैं? आपको बहुत बड़े प्लेयर They are much bigger player. What do you like about their game? ऋषभ पंत या इनकी जिनकी आपने बैटिंग देखी है? यार बड़े मुश्किल सवाल पूछो। बहुत मुश्किल सवाल ना पूछो। All of them are good. They are very very good. अब कंपटीशन तो जब होता है ना, जब मैं भी खेल रहा हूँ, तो then I can tell कि who is better, who is not better. So far what I can see, India is producing very good players. दोनों मुल्क के ताल्लुकात को बेहतर करना है तो क्रिकेट मैचेस एक अच्छा जरिया हो सकता है, इसको फिर से रिवाइव किया जाना चाहिए। भाई कहते तो सभी यही हैं कि मतलब आपस में मैच वगैरह होने चाहिए और टीमें जो हैं वो एक दूसरे के मुल्क पे आए और हालात बेहतर हो, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता क्यों नहीं होते। हालांकि दोनों कंट्रीज जो हैं वो पड़ोसी हैं एक दूसरे के और दोनों क्रिकेट पसंद करते हैं, तो मेरा तो ये ख्याल है कि आना चाहिए। अब क्या पॉलिसी है ये गॉड नोस, बट इन माय ओपिनियन दे शुड बी प्लेइंग। भाई जब हमारे हीरो आते थे, इनको पूछिए इनको कोई प्रॉब्लम थी? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और बड़े मज़े में। और जनाब फिर जब गेम ख़त्म हो जाता था तो इकट्ठे हम लोग बैठते थे, खाना पीना खाते थे, जो मर्जी बातचीत किया करते थे, यू नो। तो अब मुझे समझ में नहीं आया ये एकदम से ब्रेकें क्यों लग गई, इतनी ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए। एक सवाल मैं पूछ लूं? जी जी, 2 सवाल पूछे। नहीं, मैं सवाल तो रोज ही पूछता रहता हूँ, आज इनके सामने पूछ रहा हूँ कि इंडियन अंपायर्स ने आपको कैसे टैकल किया? नहीं एक्चुअली नहीं, वो बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं बेंगलोर में मैच खेल रहा था तो मुझको स्टंप आउट दे दिया। पहला मैच था, जब आउट दे दिया तो मैंने कहा मेरा यहाँ स्कोर करना बड़ा मुश्किल नजर आता है। इससे ज्यादा मैं कुछ और लेकिन सर उस जमाने में इंडियन अंपायर ज्यादा फेयर थे या पाकिस्तानी? दोनों एम्पायर जो थे एक ही जैसे थे। सर बेसिकली नॉट अबाउट द करंट जनरेशन, लेकिन ओवरऑल आप कितने काफ़ी प्लेयर्स के साथ बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ खेले हैं, तो आपके फेवरेट बैट्समैन कौन थे उस जमाने के? यस, सुनील गावस्कर थे, सचिन थे, और दूसरे देखिए रिचर्ड वगैरह तो वहाँ के हैं ना। देखिए हम तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जितना टैलेंट हिंदुस्तान और पाकिस्तान में है, मेरा नहीं ख्याल है कहीं और भी होगा। हाँ, फास्ट बॉलर्स ज़रूर है दूसरे मुल्कों में, हमारे यहाँ स्पिनर्स हैं। हमारे यहाँ देखिए अभी इंडिया जो जीता है चैंपियंस ट्रॉफी, वो स्पिनर्स की वजह से जीता है दुबई में। तो अगर उनके पास कुछ और क्लास है तो हमारे पास कुछ और क्लास है, हम पीछे नहीं हैं कहीं से भी। So who was the most difficult bowler that you faced? कोई भी नहीं। और जब आप जवान होते हैं ना, यंग होते हैं, तो आपको कोई भी बॉलर मुश्किल नहीं लगता। हाँ, जैसे जैसे आपकी उम्र ढलती जाती है, आपको प्लेयर्स बॉलर जो है वो तकलीफ देना शुरू कर देते हैं। सर बेसिकली लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट, तो हमेशा बात होती है कि दैट नेवर सेड डाई स्पिरिट, कोई भी मैच कहीं से भी निकाल लेते थे पाकिस्तान की टीम आपके टाइम की। अभी वो चीज़ मिसिंग है टीम में, क्या है? व्हाट इज ठीक हो जाएगी। और देखिए आज 205 स्कोर कर लिया और 1 आउट हुए। हम करने को जब अच्छा करने को आते तो बहुत ही अच्छा कर देते, लिहाजा आज
शुरुआत तो हुई है, अब देखते हैं कि कब तक ये सिलसिला जारी रहता है. Would it be fair to compare generations of cricketers, especially even the statistics of cricketers from your era to the current era, the white balls that they are playing with, and plundering runs, versus when you all were playing with a red ball, there was reverse swing, the ball used to get old, spinners used to come into play. So, do you think the statistics, it's fair to have that era of statistics versus this era, also about the quality of bowling then, the bowling now, the batting then, the batting now? So, do you think that it's fair to have compare generations and statistics? एक्चुअली क्या है कि मुझे बिशन बेदी की बात अभी तक याद है. वो पाकिस्तान आए हुए थे तो पाकिस्तान अच्छा खेल रहा था, बहुत अच्छा खेल रहा था. तो अब हर कंट्री के प्लेयर्स की सोचने का तरीका और होता है, खाने पीने का तरीका और होता है. तो इंडिया के मुझे प्लेयर अभी तक याद है, स्पेशली स्पिनर. वो कह रहे जेड मेरा नाम है भैया, कि हम चारों पांचों स्पिनर्स गेम खत्म होने के बाद कोई आधा से पौना घंटा बात करते हैं कि जहीर को आउट कैसे कर रहे हो. मैंने कहा यार ये बात नहीं है, मैं फॉर्म में हूँ. जब आप फॉर्म में हो तो कोई बॉलर भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता. तो प्लीज डोंट टेक इट सीरियसली. लेकिन हमारी कॉमें तो आपको पता है ना, वो फिर एकदम से बहुत सीरियस ले जाती है. सर दीपक. यस सर. सर आप बहुत अच्छे टाइमर ऑफ द बॉल थे सर, उसका राज क्या था सर? कंसंट्रेशन मत बोलिएगा सर, उसके अलावा कुछ बताइए. इन्हें भी नया शौक चढ़ा. प्रैक्टिस बहुत करता था जी, मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता था. और प्रैक्टिस इस तरह से करता था कि सुबह से लेके और शाम तक, जब तक मेरे वालिद साहब ऑफिस से आते थे, मैं खेलता रहता था. अब मुझे बताएं कि जो सुबह से लेके शाम तक खेलता रहेगा, उसकी टाइमिंग सही नहीं होगी तो क्या ठीक होगा. Sir, how much is the role of the cricket bats in the way the game is played? You know, like now you see Messi's also going for a six, which we never saw in your time, or third man पे six जाती है, miss it. How much is the role of the thickness of the cricket bat in that? Or quality of the bat. Or quality of the bat. Very thick. I cannot hold it now. I cannot hold it now. It's really very heavy. I don't know whether I can bat with that. I used to bat with 2.2 weight. Thickness. नहीं, weight. As a weight. Oh, pound. And with that bat, I used to be timer of the balls so well. So this is what you call sometimes. This is a gift somebody gives you. Sir, how was it to play or face Imran Khan, Sarfaraz Nawaz in the nets? Were they as lethal as they were in the matches, or they were slightly easy to face? You tell me who was the lethal among these fast bowlers? No, how was it? Both were not easy to face. Imran. Sarfaraz? Sarfaraz was, he used to see ball all over. And Imran was quick, but not that quick, but quick. And he was a very good bowler, very good bowler. And what else? Sarfaraz Nawaz and no. How was it to face them in the nets? Net पे आप. At nets, it was normal for me. देखिए बात सुने जरा.
when you go to England for the first test match and you score 274, for me, all those fast bowlers used to be the fastest. But it all depends how you concentrate. अगर आप में will है to stay at the wicket for a long time, you can bat. I tell you the story about my county cricket. First day, I was 158 not out. Test match at Edgbaston. Some county secretaries, they came. They said, I want Zahir Abbas to sign for me. I said, I cannot sign now because I'm still batting. How can I sign? It's very difficult. Scoring 158, contract will be different than 274. Was that the additional motivation to go on the next day? No. Look, when you are at the crease, be at the crease. You never know when you will be out of form. So stay there at the wicket. If you see my record can tell when I was on field or I was batting. What respect do you have when you are in the dressing room? No respect. Until unless you have cricket bat in your hand. That's it. So what did you do to concentrate, get that concentration? What did you do? Concentration. Something off the field that you worked on, आजकल डिस्ट्रैक्शन भी होता है, लोग कहते हैं जल्दी कि सोते थे, देर में सोते थे, जल्दी मैंने तो बताया ना कि मैं जब इंडिया की टीम थी या जब भी कोई टीम आती थी, जब मैं इंग्लैंड में होता था काउंटी क्रिकेट या टेस्ट मैच, तो एकदम से सोता एकदम से झटका लगता था मुझे और मैं जाग जाता था. अरे ज़हीर तुम जाग रहे हो, सो रहे हो, भाई सुबह तो मैच है, तो तुम कैसे सो सकते हो? तो उठ जाता था. इंडिया की जब टीम आई थी तो मैं सो नहीं सकता था कि मेरा तो कल दुनिया के बेस्ट स्पिनर्स से मुकाबला है. तो यही होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं. सर अजहर की आपने बहुत ज़बरदस्त हेल्प करी थी 89-2 में जब इंडिया गया वहाँ पर पाकिस्तान, तो आपने उनको थोड़ा ग्रिप कराची टेस्ट के पहले. अरे यार वो खुद इतना समझदार है, थोड़ा सा बता देने से उसने ज़्यादा ही सीख लिया. बताया क्या? आपने बताया क्या? हाँ बताया क्या, थोड़ा वो बताना क्या था, वो कह रहा था कि मुझसे जोर से शॉट नहीं लग रहा. मैंने कहा तेरी ग्रिप क्या है? तो मैंने कहा ग्रिप बता. उस वक्त सचिन तेंदुलकर के फर्स्ट टाइम आया था कराची, तो मैंने जी उसको ग्रिप बता दी, तो उसने 90 और सब कर दिए. मैंने कहा देखिए याद रख, ये तूने क्यों इतना स्कोर किया? तो हम लोग अपने लगे होते थे बातों में. किसी को बताना जो है ना बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है. अगर कोई आपसे पूछे तो ज़रूर आप उसको बताएं कि ये आप में खामी है या बुराई है, इस वजह से आप सही नहीं खेल पा रहे, आप ज़रूर समझाएं. ये मेरा असूल था कि समझाना. सबसे पहले वो ज़बान मुझे अभी भी याद है 1978 की, कि ख्वातीनो हजरात, मैं अपनी दिली हकीकत, मोहब्बत और शौकत के साथ आप तमाम सुरमाओं को मुबारकबादी पेश करता हूँ उस चमकते हुए कारनामे के लिए जिन्होंने क्रिकेट की तारीख को एक वकार बख्शा, एक इज्जत दी है.
जिस तरह से ज़ाहिर अब्बास साहब यहाँ पर आए हुए हैं, we welcome him in the country, and one of the greatest ever cricket batsmen the world cricket has ever seen. He was known as a Asia Don Bradman. Well, जिस तरह से इन्होंने फरमाया कि हम लोग 78-79 पाकिस्तान की टूर पे गए थे, और जिस तरह से हमारी जो खातिरदारी वहाँ पर की गई थी, उसको हम लोग जिंदगी में कभी भूल नहीं सकते। क्योंकि मैचेस अलग बात है, आउटसाइड द बाउंड्री लाइन जिस तरह से हमारी दोस्ती, यारी, प्यार, वो जो जाहिर भाई, मुश्ताक भाई, मोहसिन खान, वसीम राजा, वसीम बारी, वो सब आते थे हमारे कराची इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में, और लाहौर में भी, और हर एक जगह में। We had a very long trip there, but the kind of the experience had, and the hospitality, you can't go wrong in Pakistan. I mean, the people were so warm, and there were a lot of affection, दिल से प्यार करते थे। भले ग्राउंड में मारामारी होती थी थोड़ी बहुत, that is a part of the game, जिस तरह से एक्चुअली मुझे नहीं कहना चाहिए, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि जब हम पाकिस्तान में 3 टेस्ट मैच की सीरीज खेले, तो शकूर राणा, I'm extremely sorry to say that, but Shakur Rana was so firm. He was more firm than Asif Iqbal and Imran Khan. वो बोलते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान में तो वही होगा जो हम चाहेंगे। क्योंकि एक मैं वाकया आपको बता रहा हूँ, मैं तो सिर्फ 2 टेस्ट मैच वहाँ पर नहीं खेला था, फैसलाबाद और लाहौर में। 3rd टेस्ट मैच में मुझे जब मौका मिला, तो एक बिशन बेदी कुछ अंदर चले गए थे, तो सुनील गावस्कर को कप्तानी दी गई, और सुनील गावस्कर ने मेरे पास बॉल फेंका, वो बोला तुम स्पिन डालो, तो मैंने स्पिन डाला, और मुश्ताक मोहम्मद ने ऐसा बीच में आके ऐसा स्वीप किया, और पीछे लगा वो बॉल, पीछे लगा एकदम मिडिल स्टंप, लाउड अपील, हाउ वाज दैट? शकूर राणा का उंगली ऐसे नहीं आया था आधा। और वहां पर मुश्ताक मोहम्मद साहब ने बैठे बैठे बोला, खबरदार। उनका उंगली नीचे आ गया, लौटा दिया गया। लेकिन उसके बाद जब शाम होती थी, मैच खत्म होता था, और मुश्ताक साहब वो हमारे ड्रेसिंग रूम में आते थे, होटल में आते थे, तो वहाँ पर 1-2-4 जाम भी होते थे। तो बिशन बेदी साहब ने, हमारे सरदार जी ने उनको पूछा कि यार इतनी दादागिरी, बोलते देखिए साहब वो काउंटी में खेला करते थे, नॉर्थम्पटनशायर। तो ये सब बातें बातें तो कहने के लिए बहुत सारी है वो टूर की, लेकिन दिल से अब्बास साहब, वेलकम टू इंडिया, एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। जैसे फिर अगर इंडिया से पाकिस्तान आए तो कभी ताल्लुका खराब हो सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि पता नहीं 78 ही था, क्या था, 78 कि मैंने अपना 100 किया था लाहौर में, और वो 200 रन्स किया था अगेंस्ट इंडिया। तो मैंने रात को दावत की, सारे बैठिए अच्छा लगेगा।
तो हम लोग सब इकट्ठे थे, इंडियन टीम, और मैं अपना जश्न मना रहा था कि भाई 100 सेंचुरियां हो गई। Yeah, to score 100, it's not a joke. I'm telling you, it's not a joke. आपको धूप में खड़ा होना पड़ता है, सर्दी में खड़ा होना पड़ता है, डिफरेंट कंडीशंस में खड़ा होना पड़ता है, और जब आप 100 कर लेते हैं तो जो आपको प्लेजर मिलता है कि अब तो मैंने इसके बाद 1, 2, 3, 4 से कब तक 100 की तरफ जाऊंगा, मुश्किल है। लिहाजा मैं अपने भाइयों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि ये लोग थे जब मैंने 100 सेंचुरियां की। लेकिन ये जरूर है कि हमने एंजॉय किया साथ में with Indian players, and I'm thankful to you guys. Very kind of you, very kind of you. यार आते रहो। अब हम खेल तो नहीं रहे, यार कितनी दूर है? चंद घंटे बहुत ही, और वो भी अगर आप वहाँ से जाते हो, बॉर्डर से जाते हो, तो भाई 2 मिनट में पहुँच जाओगे। वो एक वाइट लाइन है, उसको क्रॉस करें पाकिस्तान, इधर आ जाए इंडिया। तो ये सर इसी से जुड़ा हुआ है, एक सवाल दिल में आता है कि ये तो क्रिकेटर्स की हुई है, जाहिर सी बात है ड्रेसिंग रूम में सब आप दोस्त थे, खाते पीते थे, बहुत अच्छी बातें होती थी, लेकिन जो आप इंडिया के खिलाफ जब खेलते थे तो इंडियन शायकीन का क्या रिएक्शन होता था, जो मैच देखने वाले स्पेक्टेटर्स है, क्या एनिमोसिटी, क्या गुस्सा, कभी किसी ने कुछ फेंका होगा, कुछ या मजाक उड़ाया, ऐसा कुछ? मैं आपको बताऊं, देखिए इंडिया के लोग जो हैं वो क्रिकेट को पसंद करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ, ये भी बताता हूँ कि इंडिया में मेरे चाहने वाले भी बहुत ज़्यादा, मेरा ये ख्याल है, लेकिन ये कि दे रियली लव मी। कहिए ना कि सबसे पहले तो मेरी बीवी मेरी बीवी कानपुर के हैं, तो मैं तो यही कहूँगा, ससुराल है यहाँ सर, आप लोगों से रिक्वेस्ट, आपका ससुराल है यहाँ, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि यार पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस होते रहे तो हमें और भी खुशी होगी, हमारी जिंदगी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा कि जब आपने वाघा बॉर्डर से इस बार अंदर कदम रखा तो क्या फील हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, आपके दिल में क्या क्या बातें आई? मैं जब वाघा बॉर्डर से अंदर आने लगे तो हमारा एकदम से मैं ये देख रहा हूँ, मेरा सामान बड़े तरीके से इंडिया की तरफ जा रहा है, ये वो। जैसे हम इमिग्रेशन की तरफ गए, इतने में मेजर साहब आए, एक ब्रिगेडियर साहब आए, और कुछ और अपने हुकूमत के लोग समझते हैं, हिंदुस्तान की हुकूमत के लोग आए। मैंने कहा यार ये खास, ये क्यों आ रहे हैं भाई, अल्लाह खैर करे, मैं पकड़ने तो नहीं आ रहा। फिर मैंने कहा नहीं, मेरे पास इतना बड़ा सबूत है तो मुझे कोई नहीं पकड़ेगा। लेकिन उन्होंने साहब इतनी इज्जत की है, इन्होंने कहा मैंने माथा टेकना है गोल्डन टेम्पल पे, लेकिन टाइम नहीं था, हमने जहाज ले रहा। मैं जयंतीलाल बैठे हुए हैं, बहुत दिनों से क्रिकेट के कोच हैं, कोचिंग कर रहे हैं, मुझे लगता है कम से कम 15-20 साल शायद और लंबे से कर रहे हैं, तो मैं सोच रहा था कि वो भी कुछ पूछें। और नहीं पहले पूछने का तो सवाल नहीं है। 71 टूर पे हम लोग जहीर साहब का भी फर्स्ट हाफ चालू था, उधर टेस्ट मैच वो लोग हार गए थे, जब हम लोग जीते स्पेशली कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए हमारे ड्रेसिंग रूम में आए थे और इतनी खुशी हुई थी। देख लीजिए 71 कहाँ और आज क्योंकि आपको तो मैं खेलते टीवी पे ही देखा हूँ। देखिए बात असल ये है कि ये किस्मत की बात है, मैं आपके सामने मौजूद हूँ, मैं आपके सामने मौजूद हूँ।
जिंदगी का कोई भरोसा भरोसा नहीं, सही बात है। आज है कल नहीं है, पता नहीं चल। लिहाजा दुआ करते रहे हम एक दूसरे के लिए। सही बात है, सही बात। नहीं मैं सिर्फ ज़हीर अब्बास साहब के लिए एक ही बात का कहना चाहता हूँ कि आजकल 2020 क्रिकेट बढ़ गया है, वनडे क्रिकेट बढ़ गया है, और टेस्ट क्रिकेट तो विल रिमेन फॉर एवर, इट विल नेवर डाई। ज़हीर अब्बास साहब के साथ चाहे वो टेस्ट मैच खेले या वनडे खेले या 2020 खेले, फॉर हिम there is not a single ball is a dot ball. For him, every ball is a run. The placement, the kind of, the batsmanship, the craft, he had. I mean, every batsman doesn't have that. Today, even if you see, a lot of, these 2020 games, 3 dot balls, 4 dot balls. If, ज़हीर अब्बास at the crease, there is no dot ball. This is what I mean, we have seen it in Pakistan and the return series in India. Unfortunately, when he came to India, he was not as successful as what he was in Pakistan. He almost scored almost 800 runs, and his lowest was 97. Or something like that, and Sunil Gavaskar got his wicket in Faisalabad or somewhere. And maybe in India. नहीं मैंने नहीं किया था। मैंने खेला ही नहीं था। I played only last test में in Karachi. तो नहीं, सिर्फ कहने का ये है कि ऐसे खिलाड़ी बहुत कम होते हैं और गिने चुने हुए थे। आज if you count them on your fingertips, from Pakistan or Asian cricket, there are only few, like Sunil Gavaskar, Sachin Tendulkar, or maybe Imran Khan, ज़हीर Abbas, Javed Miandal, or there are very few. जो at the top level in the world cricket, they are known for their batsmanship, their character, and this is how the cricket is played, and this is how you conduct yourself. पाकिस्तान में भी चैंपियंस ट्रॉफी हुई तो आपको अच्छा लगा होगा, बहुत टाइम बाद एक टूर्नामेंट हुआ इसी बड़ा लेवल का, तो आप देखने गए थे मैचेस और मतलब कैसा लगा आपको? लगा कैसे जैसे मैं खेलता था वैसे ही लगता लेकिन ये है कि मुझे बड़ी खुशी होती है जब एशियाई कंट्रीज जो है वो तरक्की करते हैं, ऊपर जाते हैं, और हम आपस में नहीं खेलते, तो जब खेलेंगे ही नहीं तो तरक्की कैसे करेंगे? जैसे we must play, and that's past. So how do you look at India and Pakistan playing matches in neutral countries? Why are you asking about the neutral country? I mean, talk positive. That we should play each other in each other country. अब वैसे तो बहुत सी बातें हो सकती हैं, लेकिन बेहतर है एक दूसरे के मुल्कों में जाएं। मुझे याद है, पता नहीं कौन सा मैच था, इंडिया खेल रही थी, इंडिया थी कौन सी टीम, तो जनाब जहाज पूरा दिल्ली से भर के लाहौर गया था मैच के लिए। हाँ, वर्ल्ड कप था, अब अंदाजा लगा, पूरा जहाज भर के, और हमारे दोस्त इंडियन लोग थे जाने वाले, वो सब पहुंचे। तो सब कुछ ही हो सकता है ना भैया, कराओ ये आप लोगों के हाथ में है। मैं ये बोल रहा था सर कि जो बेंच स्ट्रेंथ है हमारे यहाँ इंडिया में, अभी चैंपियंस ट्रॉफी हुई, बुमराह नहीं था, विकेट कीपर हमारा ऋषभ पंत नहीं था, और भी ऐसे बच्चे हैं जो 300 रन बना के, करुण नायर, चांस नहीं मिल रहा है, लेकिन बेंच स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग है, ये नहीं होते हुए भी हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। तो
आपके यहाँ सालों से वही खिलाड़ी खेलते आ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, हार्डली कुछ बदलाव नजर आता है। तो कुछ है क्या आपके यहाँ मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान की टीम वैसी पहले जैसी आपके ज़माने में हुआ करती थी ऐसी बन जाए? हमारे ज़माने में तो ये होता था कि हमारे से दूसरी कोई टीम जीता ही नहीं करती थी, हम इतनी स्ट्रॉन्ग टीम होती थी। और देखिए कहाँ हम हर मैच हार रहे थे। आज न्यूजीलैंड के खिलाफ 205 रन और एक खिलाड़ी आउट हुआ, मैच जीत गए। तो हमारा कोई भरोसा भी नहीं है हम क्या कर लें। जी सर, ये इत्तेफाक होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये इत्तेफाक बार बार हो। नहीं, हम अच्छा करेंगे, आई कैन अश्योर यू। और ये मैसेज जो है मैं खुद लेके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जाऊंगा कि आप लोग ये चाहते हैं ऐसा ऐसा हो, और होगा ऐसा। कुछ लोग हैं चेंजेस लानी पड़ेंगी, लेकिन ये है कि हमारी टीम वैसे देखा जाए बहुत अच्छी है। बल्कि देखिए जब मैं खेला करता था 67 में या 69 में, तो मुझे पहले एक दिन के 15 रुपए मिला करते थे, 15 रुपए। और आजकल लड़कों को एक टेस्ट मैच के 60 लाख या 70 लाख रुपए मिलता है। तो ये ज्यादा अच्छा खेल रहे हैं, हम अच्छा खेला करते। जरूरी है बहुत सी चीजें ठीक करने की, और वो होंगे, वो जरूर होंगे। After a long time, how do you feel to be here today? Oh, great! I am very happy to be here, and I can see the progress in Dubai, in Mumbai, Delhi, and over here. जी? मुंबई में हर जगह ही नए नए घर बन रहे हैं, हर जगह ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स आ रही हैं, हर जगह नए नए सड़कें बन रही हैं। तो भैया ये सड़क कहाँ लेके जाओगे? सही कर रहे हैं आप, जो कुछ भी कर रहे हैं आप अपनी कौम के लिए कर रहे हैं। हमको पाकिस्तान लेने आना है सर के, सर के पाकिस्तान लेके आना है। बहुत अच्छी बात है। यहाँ से तो नहीं जाएगी, यहाँ से नहीं जाएगी, लेकिन दिल्ली से चली जाएगी। लेकिन ये जरूर है कि क्रिकेट मैच में ज़्यादातर जोर यहाँ देने आया हूँ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की क्रिकेट होनी चाहिए और ज़रूरी होनी चाहिए। देखना चाहिए, न्यूजीलैंड got 200, Pakistan chased with 200 for 1 in 20 overs after losing the first 2 games. मुझे यकीन नहीं है। तो यकीन करना पड़ेगा क्योंकि रिजल्ट स्कोर शीट says that. We played very well today, and I hope we should be playing like that. Basically, thank you for having us, and it's a great honor, a great pleasure. And for me, मैं मायके वापस आई हूँ और इतना कहूँ मुझे ससुराल में बहुत प्यार मिला है, so it's been wonderful। और आप भी आइए, मेरा ससुराल देखिए। नहीं, इनके बारे में बोलना था, ससुराल के बारे में नहीं बोलना था, ज़हीर भाई के बारे में बोलना था। आपने कैसे कंट्रोल किया? How did you? बताइए कौन सा वाला कि जुर्म को गुलाम कैसे बनाया? वो तो बोलो, he's just a very good man, he's just a very good man, you know। अच्छी बात है। I'm sure we all know it that he's a good man। आपके नजरिए से भाई आप तो ट्रेड सीक्रेट पूछ रहे हैं। No, he's a wonderful husband और मुझे मारता पीटता नहीं है। And बहुत मुझे सर पे बिठा के रखा हुआ है। And because of him, everybody in Pakistan loves me. And but I have a small story for that. Once I was driving and I jumped a red light, and so the cops asked me to go aside. तो बोला जी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? I said जी नहीं, सॉरी। आपके पास अपना आईडी कार्ड है? I said जी नहीं, सॉरी गलती हो गई। बट मैं इतना बता सकती हूँ कि मैं ज़हीर अब्बास की बीवी हूँ
अरे बहुत कहती हैं मैं जहीर अब्बास की बीवी हूँ। So I called him up और ऐसा आप ऐसे अब मेरा निकाहनामा लेके आए और बता दें कि मैं ही एक वाहिद बीवी हूँ।